Hello everyone, good evening. How are you all? Good evening, sir. We are fine, sir. And what about Good you? evening, sir. We are fine, sir. What about you? I'm also fine. I welcome you all in English class. In your English class, काफी दिनों बाद start हो रही है. After so many days, we are going to learn. We are going to read English language subject. So फिलहाल start हो ही रहा है आज से. So what we have to do? Just we have to start the topic. We have to start the chapter. Whatever we were learning, whatever was going on before summer break. So let me confirm. The first chapter was already the explanation of the first chapter was completed, or Yes, anything sir. was remaining. Yes, sir. So all So beta, the questions of get going section. Let me open the book first. So beta, it is the first chapter of your English book, Daisy's Baby. It already the yes, explanation of sir. this chapter already done. If anybody missed the class, Yes, what they sir. can do, they can go through the recorded video, whatever already has been that is already uploaded on the YouTube. After explanation of this chapter, also we had question answer session. Also we discussed exercise that is based on this story. Is any of the questions were remaining? I hope that all the questions were discussed, isn't it? Yes, sir. All the Yes, questions sir. have Yes, been sir. discussed. So if anybody has Yes, missed the sir. session, It is if, completed. if any of the students had missed that session, they can go through the recorded video. What you all need to do, you just need to you just need to go to the channel, and in the playlist, you need to find out the class 8th next English. In that playlist, you would be finding all the videos related to your English class 8th book only, nothing else. So you can go through that playlist. You would be getting all the videos. So let us start. After the get going section, there is a vocabulary junction. Yes, after this there is a vocabulary junction. So in this section today we are going to study about. Uh, in this section we are going to study figure of speech. Figure of speech ही नहीं पूरा topic है. There is a couple of part of figure of speech we would be talking about more. We would be talking more about those parts of figure of speech. That is similes and metaphor. I hope already you all have been taught in your previous classes about this similes और metaphor के बारे में पढ़ाया गया है ना इसके पहले. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. इसके पहले similes और metaphor already पढ़ाया जा चुका है. Remember. तो similes और metaphor अब किसी भी सेंटेंस में किसी भी similes को आप metaphor में कैसे चेंज कर सकते हैं, we would be learning all those things in this section. तो सबसे पहले before moving ahead on the book, I would like to ask one of the question from you all. Let me share one of the whiteboard screen so that it would be easy for you all. चलिए ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे जगह रहेगा. Okay, just I would be writing from. I'm going to write a sentence. Here I have written couple of sentences. Yes, sir. All can change, ऐसा नहीं है. आप लोग अपने हिसाब से कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं.
The first sentence is, my father is the rock of the family. Can anyone tell me? Not anyone. First of all, tell me how many students are able to comprehend this sentence. How many students are able to understand this sentence in your own language? इसका मतलब क्या है? कितने सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? My father is the rock of family. इसका मतलब निकाल पा रहे हैं? हिंदी मीनिंग इसका निकाल पा रहे हैं? Okay, most of the students are able to comprehend. It's very, इसीलिए बहुत ही आपके जो बुक में है, the roof came down steep and black like a cow. She was like a stone image. थोड़ा सा difficult हो सकता था. That is why what I have done, I've taken a very simple sentence, very easy sentence, so that you all can relate. You all can, मतलब you can understand the concept, the topic very easily. एक बार आपको समझ में आ जाएगा, फिर उसके बाद चाहे जितना difficult sentence आ जाए, it doesn't matter. जो मुझे पढ़ाना है similes और metaphor, वो आपको आ जाएगा. The first sentence is, my father is the rock of the family. क्या यहाँ पे जो फादर है, क्या वो रियली में रॉक है? अच्छा, रॉक मीन्स क्या होता है मोहम्मद तनवीर? चट्टान। बिल्कुल. तो माय फादर इज द रॉक, क्या आपके किसी के भी फादर क्या असली में क्या चट्टान हो सकते हैं? नो सर। नो सर. कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो रहा है? कंपैरिजन ही तो हो रहा है. यस सर। यस सर. एक चीज की तुलना किसी दूसरी चीजों से की जाए, उसमें भी एक कंडीशंस है. वो दोनों एक ही प्रजाति के, एक ही जैसे ना हो, एक ही जाति के ना हो, एक ही कैटेगरी के ना हो. जैसे अगर मैं माय फादर को मदर से कंपेयर करूं, फादर से अंकल से कंपेयर करूं, तो क्या वो फिगर ऑफ स्पीच? चलो दो बातें पहले समझा देता हूं, फिर उसके बाद समझाता हूं. पहला सेंटेंस ये है, माय फादर इज द रॉक ऑफ द फैमिली. मेरे जो पिताजी हैं वो मेरे परिवार के चट्टान है एक तरीके से. दूसरा, माय फादर इज लाइक अ रॉक इन डिफिकल्ट सिचुएशन. मेरे पिताजी रॉक जैसे हैं. कब? ड्यूरिंग द डिफिकल्ट सिचुएशन. तो क्या सही में मेरे जो पिताजी हैं वो रॉक जैसे ही हैं? ऐसा तो नहीं है ना? नो सर। नो सर. कहने का मतलब क्या है? लाइक की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे सही कर रहे हैं. कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे दोनों फादर को कहीं ना कहीं रॉक से कंपेयर किया जा रहा है इन बोथ द सेंटेंसेस. लेकिन पहले सेंटेंस में लाइक जो कंपैरिजन वर्ड्स एक होता है, कुछ कंपैरिजन वर्ड्स होते हैं. कौन कौन से? तो लाइक, एज, देन. Like. कुछ जो कंपैरिजन वर्ड्स हैं, यहाँ पे लिखा है लाइक, एज, देन. तो इस तरह के जो कंपैरिजन वर्ड्स हैं वो पहले वाले सेंटेंस में नहीं यूज किया गया है, लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में यूज किया गया है लाइक. तो पहली बात, जब लाइक या जो कंपैरिजन वर्ड्स का यूज करते हुए किसी एक चीज की तुलना किसी दूसरी चीजों से किया जाए, किसी एक मतलब कोई एक पर्टिकुलर थिंग का जो कंपैरिजन है किसी दूसरे थिंग से किया जाए, उसमें लाइक, एज या देन या रिजेंबल करके जैसे जो कंपैरिजन वर्ड्स हैं उसका यूज करते हुए अगर कंपैरिजन किया जाए तो वो आपके सिमिलीज कहलाते हैं. वो सिमिलीज कहलाते हैं. लेकिन वही आप एक पर्टिकुलर थिंग्स की जो तुलना है, कंपैरिजन है, वो किसी दूसरी चीजों से करते हैं बिना लाइक, एज, देन, बिना कंपैरिजन वर्ड्स के. अगर बिना कंपैरिजन वर्ड्स का यूज किए हुए आप किसी एक चीज की तुलना किसी दूसरी चीजों से करते हैं तो वो आपका सिमिलीज के बजाय क्या हो जाता है? मेटाफर हो जाता है. ये दोनों बातें ध्यान रहेगी. अब इसमें जो बड़ा पॉइंट नहीं मेंशन है बेटा, दो चीजों की तुलना मतलब वो दोनों अलग अलग कैटेगरी के होने चाहिए, ऐसा नहीं है. इफ वी आर गोइंग टू कंपेयर माई फादर टू माई अंकल, उसमें आप लाइक यूज करें या ना यूज करें, डजंट मैटर. इट इज नॉट ए सिमिली. फॉर द सिमिली it is mandatory that the things should be compared with the another category of the things. Same category of the things या सेम प्रजाति, हिंदी में बोले तो सेम प्रजाति की चीजें आपस में अगर कंपेयर की जा रही है, तुलना की जा रही है, तो आपके सिमिलीज नहीं कहलाएंगी. ओके? यस सर. फादर को रॉक की तरह कंपेयर किया जा रहा है, यहाँ पे भी रॉक की तरह कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन कंपेयर करने के दो अलग अलग तरीके हैं.
अब इसी तरीके से आप और भी कई सारे कंपैरिजन वर्ड्स का यूज करते हुए और भी कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं। कोई कोशिश कर सकता है, कोई ऐसा वर्ड्स जहां पे जो सिमिली हो या मेटाफर का एग्जांपल देने के लिए कोई कोशिश करें, सिमिलीज या मेटाफर का एग्जांपल दे सकता है अगर कोई तो दे। जैसे मैंने यहां पे लिखा है, यस अभिषेक। Sir, camel is the sheep of the desert. Camel is the sheep of the desert. Very good. Sheep of the Now let me desert. ask you whether it is a simile or metaphor. The metaphor. तो इसका सिमिली रूप जरा बताइए, क्या सिमिली भी इसी सेम सेंटेंस को आज सिमिली की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं? क्योंकि ये देखो पहला सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस का मीनिंग तो एक ही है, Yes, sir. लेकिन एक सिमिली है एक मेटाफर है। तो जो आपने बोला कैमल इज द शिप ऑफ द Sheep of the कैमल इज द शिप ऑफ द desert. डेजर्ट, आपने ये आपने मेटाफर, इसी को आप सिमिली में परिवर्तित करिए, कर पाएंगे? So the camel is like sheep of the desert. Camel is running in the desert like a ship, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पे सिमिली हो जाएगा, लाइक वर्ड यूज किया। यस, एनीबडी एल्स? Yes, sir. मुस्कान। Sir, she looks like a fairy. She looks like a fairy. Is it metaphor or simile? Sir, simile. Simile है। Now इसी को आप जरा मेटाफर में एक बार चेंज करें। Sir, she is fairy. She is fairy, बिल्कुल वह एक परी है। परी तो असली में तो नहीं है ना, तो मेटाफर में हो गया। चलो ठीक है, अच्छी कोशिश, बहुत अच्छा। तो आई थिंक जो अभी आप लोग कर रहे हैं यही पढ़ा है, यही पढ़ना है इस टॉपिक में, आज के वोकैबुलरी जंक्शन में। तो एक बार शुरू करते हैं आपकी बुक से। द रूफ केम डाउन स्टीप एंड ब्लैक लाइक ए काउल। द रूफ केम डाउन स्टीप एंड ब्लैक like a cowl, reaching out beyond the white galleries that encircled the yellow stucco house. ये कहीं ना कहीं आपका ये जो लाइन है ये आपकी इसी स्टोरी से ली गई है ना। The second sentence, she was like a Yes, sir. stone image, silent, white, motionless. After she placed it there. Second line also has been taken from the story, and in both the sentences there are some phrases that is in bold, और जो ये phrases bold में है, जो bold कलर में है, that are similes. क्यों similes हैं? Because she is being compared with the stone. जो she को कहीं ना कहीं किससे कंपेयर किया जा रहा है? जो The ये stone. she यानी एक विमेन है, उसको एक स्टोन इमेज से कंपेयर किया जा रहा है। एंड द रूफ इज बीइंग कंपेयर्ड टू द काउल। Cowl. तो रूफ को एक काउल से कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। Yes, sir. Yes, sir. इस मेटाफर यही, तो फिर क्या है सिमिलीज, क्या है मेटाफर, ये बताया जा चुका है। एक बार बुक्स भी पढ़ते हैं। अ सिमिली इज द कंपैरिजन ऑफ अनलाइक थिंग्स। बेटा यहाँ पे अनलाइक थिंग्स में बता दिया गया, सिमिली जो है दो अनलाइक यानी दो अलग अलग कैटेगरी से आने वाले या दो अलग अलग चीजों का एक तरीके से कंपैरिजन है। दैट यूजेस अ कंपेयरिंग वर्ड सच एज लाइक, एज, देन और रिजेंबल। The writer has compared the roof to a cowl and the women to the stone image. And after the similes, a metaphor is another example of figurative language. ये जो फिगर ऑफ स्पीच होता है एक सेंटेंस को के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए ही एक तरीके से होता है। द ब्यूटी, जो सेंटेंस की जो ब्यूटी होती है उसको बढ़ाने के लिए हम फिगर ऑफ स्पीच यानी सिमिलीज, मेटाफर या और भी जो फिगर ऑफ स्पीच है उसका यूज करते हैं। तो मेटाफर इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज। However, it is quite different from a simile. ये थोड़ा simile से अलग है, ये भी एक तरीके से कंपेयर करने के लिए ही यूज किया जाता है। A metaphor compares unlike things without using any comparison words. मेटाफर जो है like things को ही कंपेयर करता है, अलग अलग कैटेगरी के ही वस्तुओं या चीजों को कंपेयर करता है without using any comparison words. It makes the comparison by establishing a common characteristics of both the objects being compared. ये कहीं ना कहीं दोनों अलग अलग जो भी कैटेगरी के चीजें हैं उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यानी जो उनके गुण हैं
जो उनके रिजल्ट हैं उनको कंपेयर करते हुए आपस में कंपेयर करता है, उसको उन दोनों के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करता है। तो ये तो रहा सिमिली और मेटाफर। अब ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ भी चुके थे, तो फिर 8th में पढ़ना क्या है? 8th में क्या पढ़ना है? द अबव सिमिलीज कैन बी चेंज इनटू मेटाफर एज शोन इन द एग्जांपल। जो अभी आपने सिमिलीज पढ़ा उसको मेटाफर में चेंज किया जा सकता है। आपने यहाँ पे पढ़ा शी वॉज लाइक ए स्टोन इमेज, अब उसी को अगर हम शी वॉज लाइक ए स्टोन इमेज, वहां पे लाइक यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है? शी वॉज ए स्टोन स्टैचू, साइलेंट व्हाइट मोशनलेस आफ्टर शी प्लेस्ड इट देयर, यानी शी वॉज लाइक ए स्टोन इमेज की बजाय शी वॉज ए स्टोन स्टैचू बना दिया गया। दोनों का मीनिंग एक ही निकल रहा है, एक ही जैसे, मतलब दोनों को कंपेयर किया जा रहा है। बट पहला जो था ऊपर वो सिमिले था, क्या ये यहाँ पे कोई कंपेरिजन वर्ड यूज किया गया है? नो सर। No, sir. No, That sir. means कि is it simile or metaphor? सर मेटाफर। Metaphor है। The yellow Metaphor. stretched house stood there, the roof a steep black cowl that encircled it. It is also one of the example of metaphor. यहाँ पे भी आपको कंपेरिजन वर्ड्स नहीं यूज किए गए। तो इसी तरीके से जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स दिया गया कि किसी भी सिमिलीज को मेटाफर में चेंज किया जा सकता है, तो कुछ सिमिलीज और मेटाफर के लिए कुछ कीवर्ड्स दिए हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे कुछ सिमिलीज, पहले सिमिलीज और मेटाफर को पहचानने की कोशिश करेंगे पहले क्वेश्चन में। उसके बाद हम सिमिलीज को मेटाफर में या मेटाफर को सिमिलीज में जो भी डायरेक्शन होंगे, जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे, उसको फॉलो करते हुए क्वेश्चन एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो here are some of the hints, some of the keywords that is used for the simile. As quick as lighting, as sharp as razor, as blind as a bat, as free as a bird, as cool as a cucumber, as deaf as a post. इन सभी का मतलब समझ में आ रहा है? लाइटिंग, एज क्विक एज लाइटिंग, ये इतना जल्दी था जैसे कि प्रकाश, यानी लाइटिंग, लाइट की जो गति है वो बहुत ज्यादा है, तो एक तरीके से उसका जो जल्दी होना वो कहीं ना कहीं लाइट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो लाइट के जो गुण है, जो उसकी गति की स्पीड है, उसे तुलना करते हुए कहीं ना कहीं रिलेशनशिप। अब रेजर, जो आप रेजर यानी आप कह सकते हैं ब्लेड, आप कह सकते हैं, या जो आपका स्विंग मशीन है, शेविंग, तो एज शार्प एज ए रेजर या नाइफ आप बोल सकते हैं, एज शार्प एज ए नाइफ। तो इतना ज्यादा शार्प है, इतना ज्यादा तीक्ष्ण है कि जैसे कि चाकू की तरह या फिर रेजर की तरह। तो दीज आर द फ्यू टर्म्स, दीज आर द फ्यू comparison words can be there are some of the comparison words that can be used during framing sentences. And if we talk about for the metaphor, the field was white blanket after the storm, the world stage, time is money, life is a roller coaster or journey, books are keys to imagine. तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये मेटाफर के कई सारे एग्जांपल हैं, ये सिमिलीज के कई सारे टर्म्स हैं, कई सारे मतलब ऐसे कंपैरिजन वर्ड्स हैं जिसको हम सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे तो पूरा सेंटेंस ही है, क्योंकि इसमें कोई आपका ऐसा तो है नहीं कि कोई कंपैरिजन वर्ड्स बताया जाए जो यूज किया जा रहा हो, पूरा सेंटेंस ही होगा ये, तभी इसका मेटाफर बनेगा। तो यहाँ तक समझ में आया? यस सर। तो सिमिलीज को मेटाफर Yes, sir. बनाने का प्रयास करते हैं एक्सरसाइजेस में। So exercise की बात करें, the first question is read the sentences, identify similes or metaphor used in them. हम सभी को अभी similes या metaphor को identify करना है। We need to write yes if it is a simile and M if it is a metaphor. So first sentence is, what happened? You look as happy as a clam. What happened? You look as happy as a clam. So what is this? Is it metaphor or similes? सर सिमली। Sir, simile. Very easy. Simile. It's a simile. Yes. Simile. In this sentence, we are not having any comparison words.
No, we are having the comparison word, sorry, as. That means कि this is simile. And next, the camel is the sheep of the desert. अच्छा यही देख के बताया था क्या? The camel is the sheep of the desert. कोई भी comparison words नहीं है, एक तरीके से metaphor है. She waved my words away as if she waved my words. She waved my words away as if fanning gnats. तो इसमें क्या as comparison word है ना? Simile. Yes, sir. Yes, sir. तो simile ये भी है. Simile. Similes are like metaphor in some ways. Similes are like metaphor in some ways. क्या है? यहाँ पे like is a comparison words. तो that means कि comparison words जहाँ पे हो वो भी दो अलग अलग कैटेगरी, सिर्फ as like ही नहीं देखना है, आपको ये भी देखना है कि simile और metaphor है वो अलग अलग कैटेगरी के हैं, इसलिए दोनों को कंपेयर किया जा रहा है, इसलिए वजह से simile है. लाइफ इज वन लॉन्ग स्कैरी रोलर कोस्टर. अब रोलर कोस्टर तो लाइफ है नहीं, कंपेयर ही किया जा रहा है, तो ये सिमिली है मेटाफर है. लेकिन मेटाफर कोई भी आपका कंपैरिजन वर्ड्स नहीं है. आई होप ये तो आसान था. नेक्स्ट, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंसेस. We need to choose the option, the best option that complete the sentence. The first question is William is feeling as a proud as. William is feeling as proud as. William जो है वो proud feel कर रहा है as a pony, as a peacock और as a panther after winning the match. क्या हो सकता है? Panther. तो peacock नहीं हो सकता. पैंथर क्यों होगा, पिकॉक क्यों नहीं होगा? फिलहाल जो पिकॉक होता है ना, एक तरीके से प्राउड की अगर बात करें, देखो पैंथर को हमेशा शक्तिशाली माना जाता है, ताकतवर माना जाता है, चीते की तरह दहाड़ना बोलते हैं. तो आवाज या फिर शेर, यानी पैंथर की वजह अगर लायन होता तो कहीं ना कहीं उसकी शक्ति, यानी उसकी जो शक्ति या बल की बात किया जाता, ताकत की बात किया जाता, तो शायद लायन से कंपेयर किया जाता है. लेकिन प्राउड को हमेशा ही पिकॉक से कंपेयर किया जाता है. आप कहते हैं ना कि किसी, अच्छा ये बताएं, जैसे पैंथर को मतलब उस जो पैंथर एक कहीं ना कहीं उसकी चाल, चीते की चाल कहते हैं ना, तो उसकी जो किसी की गति है, जैसे आप लाइट से भी कंपेयर कर रहे थे, वो पैंथर माने एनिमल्स की बात करें तो पैंथर से कहीं कहीं कंपेयर किया जाता है. इसी तरीके से अगर किसी ब्रेन की बात हो तो सबसे ज्यादा बुद्धिमान या मान लो बहुत ही ज्यादा कोई चालाक है, तो वो उसको किस एनिमल से कंपेयर किया जाता है? फॉक्स. किससे? लोमड़ी. Fox. तो फॉक्स, कहीं ना कहीं फॉक्स को उसकी ब्रेन की वजह से कहीं ना कहीं हम क्या कह सकते हैं, चालाकी से लेकर जो मतलब ये कह सकते हैं ही इज अ पर्सन, मतलब ही इज अ क्लियर एज ए फॉक्स. वो इतना चालाक है जैसे कि फॉक्स की तरह बोल सकते हैं. ही इज अ क्लियर लाइक ए फॉक्स. एक तरीके से सिमिली हो जाएगा, कंपैरिजन वर्ड्स यूज किया गया. फॉक्स से किसी ही कोई पर्सन है जिसको कंपेयर किया जा रहा है. लेकिन यहां पे जब प्राउड की बात करें, जैसे आप फॉक्स क्लियर के लिए फॉक्स यूज कर रहे हो, उसी तरह पिकॉक प्राउड के लिए यूज होता है. तो यू ऑल नीड टू रिमेंबर दिस कि विलियम इज फीलिंग एज प्राउड एज ए पिकॉक, नॉट पैंथर, नॉट अ पोनी. पोनी किसे कहते हैं पता है? जो भट्टे पे आप देखते हैं ईंट वगैरह ढोते हैं. Yes, those animals are known as a pony. ठीक है. He may look like an angel or a devil or a brat, but he is very disobedient.
ही मे लुक लाइक ऐसे हो सकता है, बट ही इज वेरी डिसओबीडियंट। ये BRAT मीन्स क्या हुआ? BRAT मीन्स क्या हुआ? कितने लोगों को इसकी मीनिंग समझ में आ रही है? जब क्योंकि इसकी मीनिंग अगर नहीं आती होगी तो आप बता ही नहीं पाएंगे। बउआ जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बउआ बोलते हैं, बच्चा बोलते हैं, मतलब छोटे बच्चे को आप बउआ मतलब क्या बोलते हैं? जो सिरा सारा बच्चा हो, तो उसी उसी को आप ब्रैट इंग्लिश में फिलहाल बोला जाता है। तो एन एंजल यानी एक परी, एडेबल यानी एक तरीके से कोई शैतान की बात किया जा रहा है। अब ब्रैट, तो ब्रैट एक तरीके से छोटा बच्चा हो सकता है। तो ही में लुक लाइक वो दिख रहा था किस तरीके से? बट ही इज वेरी डिसोबीडियंट। क्या आंसर हो सकता है? सर अ ब्रैट। ब्रैट। क्या? ब्रेड। ब्रैट। चलिए ठीक है, आप ब्रैट ही कर सकते हैं क्योंकि अडेबल तो होगा नहीं। ही मे लुक लाइक अडेबल बट ही इज डिसोबीडियंट, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि बट ही इज वेरी डिसोबीडियंट ये अपोजिट अर्थ निकालेगा। जो पहला सेंटेंस है आपका यहाँ पे, ये पहला यहाँ पे सेंटेंस नहीं, एक तरीके से जो पहला एक क्लॉज है, ये फर्स्ट क्लॉज जो है वो सेकंड क्लॉज के जस्ट अपोजिट होगा। यहाँ पे डिसोबीडियंट बोला गया, बट का यूज किया गया है, इसीलिए इसका जस्ट अपोजिट होगा, इसलिए डेबल तो नहीं होगा, नेगेटिव वर्ड्स तो नहीं होगा। एंजल अगर हम करते तो एंजल तो एक कोई लड़की हो सकती है, यहाँ पे ही यूज किया गया है, तो एंजल तो नहीं होना चाहिए आई थिंक। आप लोग भी कुछ ऐसे सोचते हैं या डायरेक्टली वैसे तुक्का मार देते हैं? आप राट होगा, डेविल होगा, सर तो बताएंगे ही सही गलत कर देंगे ये सोच के। ऐसा है क्या? तो मतलब ऐसे आप लोग भी कंपेयर करने के ऐसे क्वेश्चन देखो बेटा, अब आपके सामने ऐसे ही आंसर्स आएंगे बड़ा कंफ्यूजन वाले, और कोई जरूरी नहीं कि जो बताए वो 100% सही हो जाए, उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। ये क्यों नहीं होगा? एन एंजल, एंजल तो लड़की हो सकती है ना, कि किसी लड़के को भी एंजल बोला जाता है। यस सर। नो सर। नो सर। नहीं बोला जाता ना। मैं फिलहाल अगर बोला जाता हो, एक्चुअली आई एम कंफ्यूज्ड, एंजल फिलहाल नहीं बोला जाता, लड़की को ही बोला जाएगा। ही में लोग, तो एंजल तो नहीं होना चाहिए, एंजल होगा भी नहीं, हम ब्रैट ही लगा देंगे। डेविल होगा नहीं क्योंकि बट लगा है, बट के आगे अपोजिट, यानी यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड होना चाहिए, तो डेविल इज ए नेगेटिव वर्ड, मतलब थोड़ा सा नकारात्मक प्रवृत्ति का वर्ड है। एन एंजल होगा नहीं क्योंकि ये ही है और ये एंजल है। ही मे लुक लाइक एन एंजल, यानी शी मे लुक होता तो बात अलग थी, तो यहाँ पे आप ब्रैट ही कर सकते हैं। अपॉन, अब ब्रैट भी कोई सही आंसर नहीं लग रहा है। ब्रैट मीन्स होता है बहुआ, छोकरा, छोटा बच्चा, तो वो छोटे बच्चे की तरह दिख, मतलब ही में लुक लाइक, मतलब वो छोटे बच्चे की तरह दिख सकता है, बट ही इज अ वेरी डिसओबीडियंट, लेकिन वो बहुत ही डिसओबीडियंट है, ओबीडियंट नहीं है। बच्चे कौन से ओबीडियंट होते हैं? वो तो फिलहाल छोटे बच्चे होते हैं, वो तो लेकिन होते भी है कई सारे बच्चे फिलहाल। अपॉन हियरिंग हिज नेम हिज फेस टर्न एज रेड एज, अपॉन हियरिंग हिज नेम, उसका नाम सुनने पर हिज फेस टर्न एज रेड एज पर्डल या टमाटो या एन ऑरेंज? टोमेटो। टोमेटो। टमाटो। टोमेटो। टमाटो। टमाटो। Okay, tomato is the correct answer. Tomato is the correct answer. Can anybody tell me what do you mean by puddle? सर पोखर। पोखर, पोखर means गढ़ही, गढ़ा जिसको बोलते हैं वही पोखर, उसी को ही बोलते हैं। तो पोखर हो, गड्ढा हो, गढ़ही हो, जो भी है, मतलब कोई भी गड्ढा हो। तो क्या बोला? अपॉन हियरिंग द नेम, एक तरीके से धक्का लग गया है, यानी उसको बहुत घर,
तो क्या पोखर की तरह तो दिखेगा नहीं, उसका जो फेस है वो टमाटो की तरह है, और मतलब बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो गया। ऐसा फिलहाल होता भी है। ऑरेंज तो फिलहाल पूरी तरह रेड होता नहीं। विदाउट माई ग्लासेस आई एम ब्लाइंड एज, यानी बिना मेरे चश्मे के, विदाउट माई ग्लासेस आई एम ब्लाइंड एज, मैं बिल्कुल अंधा हूँ। A किसकी bird. तरह? आ बैट या बफेलो या A क्रिकेट? bird. बफेलो तो अंधा होता नहीं, तो बफेलो तो हो ही नहीं सकता। जैसे यहाँ पे ऑरेंज रेड नहीं था, वैसे बफेलो भी अंधा तो होता नहीं। क्रिकेट मीन्स क्या होता है? झींगुर। बैट बल्ला Food. क्या होता है? झींगुर। ये भी एक तरीके से एक इंसेक्ट का नाम है ये भी तो। लेकिन जो बैट है वो एक तरीके से उल्लू, क्या वो अंधा होता है? चमगादड़ होता है बैट। चमगादड़. अच्छा सॉरी सॉरी, आउल में उल्लू होता है, बैट में चमगादड़। तो क्या चमगादड़ उल्लू मतलब अंधा होता है? दिन में नहीं देख सकता. No, sir. दिन में नहीं देख सकता, बिल्कुल सही, अंधा नहीं होता है, लेकिन फिलहाल दिन के लिए अंधा ही है। तो यहाँ पे फिलहाल द बेस्ट ऑप्शन दैट कैन बी यूज दैट इज अ बैट। द लास्ट क्वेश्चन इज लाइफ इज लाइक अ टेडी बियर, अ फैन, अ जर्नी। जर्नी। A आप journey. सोच के बताइए आप लोग की लाइफ कैसी है? टेडी बियर की तरह है, या पंखे की तरह है, या जर्नी की तरह है? मतलब बस चली जा रही है। लाइफ इज लाइक, जिसका जो भी ऑप्शन, जिसको जो भी लगेगा वो यूज कर सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि एक जगह पंखे की तरह हम घूम रहे हैं और लोगों को मुझसे फायदा हो रहा है, हर तरफ आप, लाइफ इज लाइक अ जर्नी इज, वैसे जीवन कहा भी जाता है ना, जीवन एक यात्रा है। तो जीवन एक यात्रा है। The third question is write any 5 similes used in the chapter for describing 5 different things. For this question you all need to read the complete story by yourself. Again, क्या करना है आप? While reading you need to find out, you all need to, while reading the story you all need to identify that कि कोई एक पर्टिकुलर चीज किसी दूसरे कैटेगरी, किसी दूसरे अनलाइक थिंग से कंपेयर किया जा रहा हो, और वहां पे कंपैरिजन वर्ड्स हो, यानी सिमिलीज हो। अगर सिमिलीज है तो सिमिलीज को आपको फाइंड आउट करना है, जो कि चैप्टर में 5 अलग डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर करने के लिए यूज किया गया। तो वो पांचों फैमिलीज आपको फाइंड आउट करना है। मेंशन व्हाट द 5 थिंग्स आर एंड रीराइट द सिमिलीज एज मेटाफर। फिर वो सिमिलीज जो आप लिखेंगे उसी को फिर मेटाफर में बदल के आप लिखें। तो इसको आप लोग करेंगे अपने तरफ से। नहीं कर पाएंगे तो आप एक काम करिएगा, मुझे कल रिमाइंड कराइएगा, मैं इसका आंसर बता दूंगा। एक दो सेंटेंस या 3 सेंटेंस, 4-5 सेंटेंस अगर आप लोग स्वयं सर्च कर लेंगे तो मिल जाएगा। नहीं सर्च कर पाएंगे तो 1-2 सेंटेंस में बता दूंगा, या मुझे भी पढ़ना पड़ेगा, तभी मैं भी 5 के 5 आपको फाइंड आउट करना। आपने स्टोरी में से ही फाइंड आउट करना है, अपनी मर्जी से नहीं। तो स्टोरी आप लोग पढ़िएगा। द फोर्थ क्वेश्चन इज क्रिएट योर ओन सिमिलीज बाय कंप्लीटिंग दीज कंपैरिजंस। अब आपको अपना खुद का सिमिली आपको क्रिएट करना है बाय कंप्लीटिंग दिस कंपैरिजन। ये सारे कंपैरिजन को कंप्लीट करते हुए यूज ईच ऑफ द सिमिलीज इन अ सेंटेंस। कोशिश करिए कि आप जितने भी सिमिलीज हैं वो सारे सेंटेंसेस में यूज करें। फिलहाल ग्रोइंग अप इज लाइक, इसको कोई इसका मतलब सिमिलीज बनाए, इसको कोई कंप्लीट करे। ग्रोइंग अप इज लाइक क्या? जर्मिनेशन। ग्रोइंग अप इज लाइक अ ट्री। Yes, sir. So population. पॉपुलेशन मतलब बड़ा होना, किसकी तरह? वृक्ष की तरह। क्या गलत क्या है कंपैरिजन? पॉपुलेशन बड़ा नहीं होता, वो बढ़ती है, बढ़ती है या घटती है। ग्रोइंग अप इज लाइक अ ट्री। ट्री तो बड़ा ही तो होता है। हम ये मान लीजिए, मैं अपने ग्रोथ की बात करूं, हम लोग ऐसे बड़े होते हैं जैसे कि ट्री। तो मतलब कोई बच्चा बहुत, जैसे आप अनुराग उपाध्याय को ले लीजिए, मतलब जब बड़े हो रहे होंगे तब इनकी हाइट तो है, इनके फिलहाल हाइट तो भगवान ने इनको दे ही रखा है। तो लोग जो हम लोग छोटे लोग जो हैं, जो छोटे हाइट वाले हैं, वो तो यही कहेंगे ना,
वो तो ऐसे बड़ा हो रहा है जैसे कि ट्री, मतलब बिल्कुल। तो वी कैन स्पीक लाइक दिस, शी स्टूड लाइक अ, शी स्टूड लाइक अ, स्टैचू। वो खड़ी रहेगी गई जैसे कि, वो खड़ी रही जैसे कि स्टैचू। इलेक्ट्रिक पोल, स्टैच्यू। खम्मा खड़ा है या और भी कुछ चीजें खड़ा रह गई हो जो हिलता ही ना हो। शी स्टूड, वो ऐसे कैसे खड़ी रह गई, किसी ने धक्का दिया या किसी को कुछ हो, मतलब कोई बात हुई और फिर भी वो टस से मस ना हुई, वो खड़ी जस की तस रह गई। शी स्टूड लाइक अ इलेक्ट्रिक पोल, शी स्टूड लाइक अ स्टोन, शी स्टूड लाइक अ माउंटेन, माउंटेन तो नहीं चलता हिलता तो नहीं है ना, वो तो मोशन तो नहीं रहता ना। तो शी स्टूड लाइक अ मोशन, शी स्टूड लाइक अ इलेक्ट्रिक पोल, एनीथिंग यू, मतलब मिनी आंसर्स यू ऑल कैन राइट। फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ आप चाहे वही लिख लें, लेकिन अगर आप लोग अपनी मर्जी से कोई दूसरा लिखते हैं तो इट वुड बी बेटर। माई हेड हर्ट्स लाइक, मेरा जो हेड है वो हर्ट कर रहा है, दर्द कर रहा है। लाइक कैसे, माई हेड हर्ट लाइक, हर्ट मतलब एक तरीके से चोट खा जाना, ठीक है। दर्द, पेन, या फिर वहां पे पेन तो नहीं होगा, हेडेक होता है, एक होता है जो, क्योंकि जब अंदरूनी दर्द होता है तो उसमें एक्टिंग बोलते हैं। तो माई हेड हर्ट्स लाइक यानी मेरे सर में चोट लग गई, जैसे किस तरह, जैसे कि किसी ने मुझे हथौड़े से मार दिया हो, बोल सकते हैं। माई हेड हर्ट्स लाइक जस्ट हिट मी, माई हेड हर्ट्स लाइक someone just hit it with a hammer, we can write it like this। yes, कोई और बच्चा बोल रहा था कोई दूसरा आंसर। बेटा 1 मिनट और बचा है, जल्दी से मैं कंप्लीट करता हूँ। टीयर्स वर रोलिंग डाउन हर चीक्स, जो आंसू थे वो रोल डाउन हो रहे थे उसके चीक्स पे, जैसे कि क्या रोल डाउन होते, रोल डाउन करने वाला कोई चीजें बताइए क्या हो सकता है। टीयर्स वर रोलिंग falling डाउन हर stream. चीक्स लाइक अ वाइट, So like a falling stream. लाइक अ, So like a falling stream. कुछ भी हो सकता है। रोलिंग डाउन जस्ट लाइक अ बॉल ऑन द फ्लोर, रोलिंग डाउन जस्ट लाइक अ मार्बल, नहीं मार्बल नहीं, वो मार्बल ही होता है ना कंचा, वो भी तो रोल डाउन है। टीयर्स वर रोलिंग डाउन हर चीक्स लाइक अ white pulse down a pale white street, yeah, like a marble on the, tears were rolling down her cheeks like a marble on the tiles या फ्लोर, फ्लोर पे जैसे मार्बल जैसे रोल डाउन करता है वैसे टीयर्स उसके गालों पे रोल डाउन हो रहते हैं। द क्लाउड्स वर लाइक, जो क्लाउड्स है वो कैसे थे, द क्लाउड्स वर लाइक, अब कुछ भी हो सकते हैं,